पीछे मुड़। हेलो हाथ नीचे, सात राष्ट्रगीत शब्दकार। शुभ नामे जा
साथ झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। शान इसकी शाने आए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए। कब होवे प्रणव हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। અતિથિ માનનીય શ્રીમતી ડોક્ટર નીલા સોલંકી પરમાર, ચાવડા સુનિતા, આપણી સંસ્થાના સેક્રેટરી માનનીય શ્રી વિક્રમભાઈ, સર્વ સેક્શન હેડ, શિક્ષણગણ, પીટીએ મેમ્બર અને વિદ્યાર્થીઓને આજના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. 26 જાન્યુઆરી એ માત્ર એક તારીખ નથી, પરંતુ એ આપણા દેશના ઇતિહાસનો એક સોનેરી પાનો છે. ભારત દેશ પાસે સૌથી લાંબુ લિખિત સંવિધાન છે, જેનો મને ગર્વ છે. આવા અમૂલ્ય દિવસની શુભેચ્છા સાથે આપણે આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી. હું આપણા બંને અતિથિ જેઓ આ જ શાળાના જ વિદ્યાર્થીની છે, તેમનું સ્વાગત કરું છું. આ સાથે અહીં ઉપસ્થિત સર્વ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આપણા પ્રથમ અતિથિ છે ચાવડા સુનિતા, જેમણે ધોરણ 10માં 82.20% સાથે દ્વિતીય ક્રમાંક મેળવ્યો છે. હાલ તેઓ રહેજા વાણિજ્યના વિષયો સાથે આગળ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. ભવિષ્યમાં તેઓ પોતાનો વ્યવસાય કરવાની મહેચ્છા ધરાવે છે. તેઓ સ્વભાવે ખૂબ સૌમ્ય તેમજ એક સારા શ્રોતા તેમજ વક્તા છે. ભવિષ્યમાં તેઓ ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરે તેવી શુભેચ્છા. હું જુગનુબેનને કહીશ કે તેઓ તેમને એક નાનકડી ભેટ આપી સ્વાગત કરે. ધન્યવાદ જુગનુબેન. આપણા બીજા અતિથિ ડોક્ટર નીલા સોલંકી પરમાર, તેઓ પણ ગુજરાતી માધ્યમના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની હતા, જેઓ વર્ષ 1995 પ્રથમ ક્રમાંક મેળવનાર વિદ્યાર્થીની છે. તેમણે ધોરણ 10માં 93.40% મેળવ્યા હતા અને મહારાષ્ટ્રમાં મેરિટમાં 11મા ક્રમાંકે હતા. હાલ તેઓ કેનેડા ખાતે પોતાની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. તેઓ છેલ્લા 17 વર્ષથી કેનેડામાં સ્થાયી છે. પહેલા 4 વર્ષ તેમણે પોતાનો અભ્યાસ આગળ વધાર્યો અને છેલ્લા 13 વર્ષથી તેઓ એઝ અ ડેન્ટિસ્ટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. હાલ કેનેડા ટોરેન્ટો ખાતે પોતાના 2 ડેન્ટલ ક્લિનિક સફળતાપૂર્વક ચલાવી રહ્યા છે. આજે તેઓ લગભગ 30 વર્ષ બાદ શાળાની મુલાકાતે આવ્યા છે. આજે તેઓ પોતાના જીવનસાથી રાજેશ પરમાર અને પોતાના 2 પુત્ર રોનક પરમાર અને પ્રિયાંક પરમાર સાથે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે.
અમે સુરજબા વિદ્યા મંદિરના દરેક સદસ્ય આ બંને નારી શક્તિને સાવકારીએ છીએ. હું વિક્રમભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેમનું સ્વાગત કરે. એક વિગત તેમના વિશે વધુ જણાવશો. તેઓ મહારાષ્ટ્રમાં મેરિટમાં 11મા ક્રમાંકે હતા. ધન્યવાદ સર. આગળના કાર્યક્રમ માટે હું અંગ્રેજી માધ્યમના વિદ્યાર્થી આર્યા અને પ્રશાંતને અહીં આવવા વિનંતી કરીશ. Thank you, Drashti. Good morning, everyone. India celebrates its 76th Republic Day today. And this day will be celebrated with great enthusiasm and grandeur across the country, showcasing India's rich heritage, military prowess, and advancements in science and technology. Yes, Arya, and the theme for this 76th Republic Day being Swarnim Bharat, Virasat or Vikas, or Golden India, Heritage and Development. The national flag is a powerful symbol of national pride and unity, and the flag hoisting ceremony was a way to not only remember the sacrifices of us freedom fighters, but also a way to renew our commitment to the country's progress. The Constituent Assembly of India adopted the design of a tricolor on 22nd July 1947, and it became the official flag of India on August 15, 1947. We have already hoisted the flag this morning, but the primary choir wants to give us some more information about our tricolor. Let us listen to them carefully while they reiterate to us the significance of the colors and design on the tricolor. In the afternoon, the white sailing clouds that run
while the primary choir enthralled us with such a harmonious rendition. And Sumit sir, the music teacher, and they deserve a huge round of applause. Do you know, Arya, the choir has also reminded us that the saffron color of the flag represents bravery and devotion of our leaders and freedom fighters who sacrificed so much for India's freedom. So, the tiny tots of the pre-primary section want to dedicate their dance to the yodhas or soldiers of the Indian Army who even today keep us safe from enemy attacks, keep our borders safe and keep us away from sleepless nights while they forgo sleep. Let us welcome them with a round of applause.
What an enthusiastic performance that was. Abhijit sir, along with their teachers and the tiny dot, deserve a larger round of applause. Every year on January 26, the Indian President takes center stage and addresses the nation as a whole through a speech. We do have a speech by Devdatri Shah of the Gujarati Secondary. Let us listen carefully to her because she has something important to convey. नमस्ते, मैं देवरात्रि शाह आपको गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। आज मैं उस लाभान्वित विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ जो भारत को स्वर्णीय भारत बनाता है, जो वह है विकास भी विरासत भी। विकास और विरासत को अक्सर परस्पर विरोधी आदर्शों के रूप में देखा जाता है। एक और विकास आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आर्थिक प्रगति की मांग करता है। दूसरी ओर विरासत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय विरासतों को संरक्षित करने का प्रयास करती है, जो हमारे समाज को परिभाषित करती है। चुनौती एक संतुलन हासिल करने में है, जहाँ प्रगति अतीत को मिटाती नहीं बल्कि उस पर निर्माण करती है, जिससे एक टिकाऊ और सार्थक भविष्य सुनिश्चित होता है। विकास का तात्पर्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रायोगिक बुनियादी ढांचे, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की प्रगति से है। इसमें अक्सर शहरीकरण, औद्योगिकरण और लोगों के लिए अवसरों का निर्माण शामिल होता है। हालांकि विरासत में ऐतिहासिक स्मारक, सांस्कृतिक परंपराएं, भाषाएं और प्राकृतिक स्थल जैसे पीढ़ियों से चले आ रहे मूर्त और अमूर्त तत्व शामिल हैं। विकास भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वह विरासत हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। साथ में वे एक निरंतरता बनाते हैं जो हमारी पहचान और हमारी प्रगति को आकार देती है। विकास की तलाश में विरासत को नजरअंदाज किया जाए तो समाज का साथ हो सकता है, वही विरासत के लिए विकास को नकारने से विकास में बाधा आ सकती है। सतत विकास और विरासत के बीच के संघर्ष का समाधान प्रदान करता है। यह ऐसे विकास पर जोर देता है जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर सके। यह दृष्टिकोण आर्थिक प्रगति को पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ एकीकृत करता है। उदाहरण के लिए इको टूरिज्म विकास का एक रूप है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर आय उत्पन्न करता है और साथ ही इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसी तरह शहरी पुनर्विकास परियोजनाएं पुनः उपयोग को प्राथमिकता दे सकती है, जहां पुरानी इमारतों को ध्वस्त करने के बजाय उनका पुनः उपयोग किया जा सके। विश्व स्तर पर कई देशों ने विकास और विरासत के बीच के संतुलन को सफलतापूर्वक बनाया है। उदाहरण के लिए भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जयपुर शहर ने अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला के संरक्षण के साथ आधुनिक शहरी नियोजन को एकीकृत किया है। इसका पिंक सिटी क्षेत्र एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है जो पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र को आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ मिलाता है। यूरोप में बार्सिलोना जैसे शहरों ने शहरी विकास योजना में विरासत संरक्षण को शामिल करके इसी तरह की सफलता हासिल की है। आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास और विरासत को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिजिटल डॉक्यूमेंट, 3D मॉडलिंग और वर्चुअल रियलिटी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजानों को संरक्षित और साझा कर सकती है। उन्नत निर्माण तकनीक डेवलपर्स को बिना किसी नुकसान के विरासत स्थलों के आसपास कार्य करने की अनुमति देती है। सरकारी नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय ढांचे भी इसी संतुलन को सुनिश्चित करते हैं। यूनेस्को का विश्व विरासत सम्मेलन सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय सरकारें स्थायी विकास को बढ़ावा देते हुए स्मारकों, परंपराओं और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए कानून बना सकती है। विकास और विरासत परस्पर अनन्य नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है।
एक समाज जो अपनी विरासत के संरक्षण को महत्व देता है, वह सार्थक प्रगति के लिए एक मजबूत नींव रखता है, जबकि सतत विकास ये सुनिश्चित करता है कि विकास एक विकसित दुनिया में प्रासंगिकी बनी रहे। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए दूरदर्शिता, सहयोग और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अतीत का सम्मान करके और भविष्य को गले लगाकर हम एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व बना सकते हैं, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को लाभान्वित करता है। धन्यवाद। Thank you, Trisha, for reminding us the theme for this Republic Day. It is Swarnim Bharat, Virasat और विकास और Golden India, Heritage and Development. The 10th grade students of our school will leave school with mixed feelings, happy because they are looking forward to new ventures and endeavors, as well as sad because they will miss the friends, teachers and school where they have spent almost 12 years of their lives. Some students of the outgoing class want to invoke the blessings of God and their teachers and school by presenting a prayer song. We hope that our audience will appreciate their initiative and bless their efforts.
bunch of students. They are our 10th graders. This is their last performance with us, and they have prepared it in just one day. So it is sort of their own efforts, their own, just a little bit of guidance was put through. So I think they deserve a huge round of applause. We wish 10th grade students all the best for their upcoming examination and hope they will make our school proud with their achievements. Today, we have gathered here to delve into a thought-provoking topic that has sparked discussion across cultures and generations. Patriotic love versus spiritual love. Desh Bhakti बनाम देव भक्ति. Patriotic love represents devotion to one's nation, a selfless commitment to its progress and well-being, often driving individuals to make sacrifices for their country. On the other hand, spiritual love transcends boundaries, connecting us to a higher purpose, to humanity as a whole, or to a divine power, fostering universal peace and compassion. Both forms of love are powerful, inspiring, and deeply rooted in human nature. But they also pose critical questions. Which form of love truly defines us as individuals and as a society? Does one outweigh the other in importance, or can they coexist harmoniously? Today, the 9th graders of our school would like to pit themselves against each other and try and answer such questions. At this time, we also want to express our gratitude to Sushma Miss, who took the responsibility of guiding and training them for the debate. Let the debate begin. अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला वह तूफान है देशभक्ति। धर्म, लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया वह हर एक काम है देशभक्ति। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा हुआ करते थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का गोल समझ आता था। नमस्कार, मैंने विमाली आप सदन की राय से असहमत होते हुए देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देवभक्ति से वक्ता पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। महोदय, दिल तो तब टूटता है जब रेत की टीलों से ऊपर जाती है लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से भरी लाल रंग के सड़कों के दृश्य सामने आते हैं और उस पर मेरे विपक्षी मित्र देवभक्ति करने की सीख दे रहे हैं। अब आप ही बताओ, देवभक्ति करने से क्या इन लाशों के ढेर कम हो जाएंगे या आतंकवादी हमले कम हो जाएंगे? मित्रों, आखिर पेट भरने के लिए तो मेहनत और श्रम की ही जरूरत पड़ेगी। भगवान थोड़ी तुम्हें निवाले देने धरती उतर आएंगे। हमारे देवभक्तों को एक बात का स्मरण दिला दूं कि हमारे शास्त्रों में भी कर्म को ही पूजा का स्थान दिया गया है। यही आज आप सबके साथ कुछ भला बुरा हो जाने पर आप अपने भगवान को कोसते हो। अरे सोचो, अगर अब्दुल कलाम जी ने भी अपने भाग्य को कोसा होता तो आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं कहलाते, या नरेंद्र मोदी जी के ख्यालात उस चाय के ठेले तक ही सीमित रहते तो आज इस भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं कहलाते। अब जरूर आप सबके मन में विचारों का द्वंद्व उमड़ पड़ा होगा कि आखिरकार ये देशभक्ति है क्या? तो तुमसे यह भी कह दूं कि गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वह है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वह है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं परंतु जब विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वह है देशभक्ति, तो वह है देशभक्ति। जरा गौर फरमाएगा, क्या जिस मूल को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, क्या जिस मूल को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, जिस मूल को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है, बेईमानों और गद्दारों से है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कर दूं कि यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम, कि यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम कि न सरकार मेरे
उन्होंने अपने लिए नहीं अपने देश के लिए ही जीना सही समझा। फिर चाहे वह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या रानी लक्ष्मीबाई ही क्यों ना हो, इनके जज्बे को देख मेरे भीतर भी एक जज्बा उठता है कि कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, कि कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा। मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पर मुस्कुराएगा, तिरंगा हिमालय पर मुस्कुराएगा। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देख बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच की भी कमी नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? महोदय, जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख करे कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटी छोटी बेटियों की तो चोटियां ही चली गई। अरे आपके लिए तो केवल एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। मित्रों, जरा अपने अंतरात्मा को टटोलिए और मेरे सवालों के सागर में गोताखोर लगाकर उत्तर दीजिए कि क्या आपकी देव भक्ति इनके दुख को कम कर सकती है? क्यों है कोई जवाब? मेरे कुछ चंद शब्दों से फीके पड़ गए। मेरे विपक्षी मित्र तो बड़े देव के नारे लगा घूम रहे होंगे, पर इन्हें यह कौन समझाए कि गंगा में डुबकी लगा आपके मन का मैल साफ नहीं होता। इसी पर मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आ गया कि मन मन धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। बस यही बात मैं अपने देव भक्तों से कहना चाहती हूँ कि देव के नाम रखी आपके पापों की गिनती कम नहीं होती। जनाब, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। बस माथे पर तिलक लगा ही तुम्हारी पवित्रता का डोर नहीं समझ आता। अपने देश के प्रति निष्ठा और ईमानदारी ही तुम्हें एक महान व्यक्ति बनाती है। बात जरूर कड़वी है, लेकिन सच है कि लोग तो कुछ चंद पैसों के लिए अपने देव को बेचने रास्ते पर उतर आते हैं। क्यों? क्या यह दर्शाती है तुम्हारी देव भक्ति? अरे जागो, अपनी देव भक्ति थोड़ी अच्छे से जगाओ, अपनी आंखों से यह पर्दा हटा, अपने देश के विकास की सोचो। अंत में अपने विचारों को समेटकर केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, जरा गौर फरमाएगा कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर इस तिरंगे से खूबसूरत मगर इस वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोटों में लिपटकर सोने में समेटकर, नोटों में लिपटकर सोने में समेटकर मरे हैं शासक कहीं, मगर इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं, इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। धन्यवाद। वो करे चिंता जिंदगी की परेशानियों की जो बेवजह की उलझनों में लिप्त है। हमें नहीं फिक्र किसी परेशानी की, हम तो ईश्वर की भक्ति में तृप्त है, ईश्वर की भक्ति में तृप्त है। यह वह भूमि है जहाँ संभाजी महाराज, राजा रतन सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर योद्धा का जन्म हुआ है। यह वह भूमि है जहाँ प्रहलाद जैसे देव भक्तों की कहानियां सुनाई जाती है। इस भूमि पर श्रवण कुमार जैसे आदर्श पुत्रों का जन्म हुआ है, जो अपने माता पिता को अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा करवाते हैं। यह संतों की भूमि है जहाँ कबीर, तुलसीदास, मीराबाई जैसे कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं से प्रेम और एकता का संदेश दिया है। इस भूमि पर गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों का संगम है। अब तो समझे जनाब, यह देव भक्ति की भूमि है, देवों की भूमि है। नमस्कार, मैं जिया सुथार आज आप सभी के समक्ष देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देव भक्ति से इस विषय के विपक्ष में अपनी राय रखना चाहूंगा। स्वामी कमलानंद गिरी ने कहा है कि मनुष्य जीवन ही ऐसा अनमोल जीवन है जिसमें भगवत भक्ति का सर्वोत्तम सुयोग मिलता है। जनाब, शुरुआत ही कड़वी बात से कर रही हूँ, लेकिन सच तो यह है कि यदि देव भक्ति नहीं है तो देशभक्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए साहस, एकाग्रता और हिम्मत की जरूरत होती है, और महाभारत इसका साक्षात प्रमाण है। पांडवों को भी साहस, एकाग्रता और हिम्मत की जरूरत थी, और यही श्री कृष्ण ने गीता द्वारा समझाया, और उन्होंने अधर्म का विनाश कर धर्म की पताका लहराई। हमारी देव भक्ति हमें औरतों की इज्जत करना सिखाती है। हम औरतों को माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली का स्वरूप मानते हैं, लेकिन घर में काम करने वाली वह गृहिणी जिसके त्याग, समर्पण एवं उसकी इच्छाओं को पैरों तले रौंदा जाता है, तब कहा जाती है आपकी देशभक्ति। माँ बाप की आंखों का तारा कहलाने वाली वह बेटी जिसे कुछ चंद दहेज के ठेकेदारों द्वारा जलती हुई अग्नि में झोंक दिया जाता है, तब क्यों आप उसके बचाव के
आपको चंद पैसों के लिए एक असमर्थ व्यक्ति को एक निर्दिष्ट पद दे देते हैं। आरक्षण को तो रोक नहीं पाए और चले हैं देश का विकास करने। आजकल विद्यार्थी अपने शिक्षकों का उपहास उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई से बढ़कर सोशल मीडिया पर ज्यादा रहता है और आपको लगता है वे देश का विकास करेंगे। हमारी देव भक्ति हमें गुरु को ईश्वर के समान पूजना सिखाती है और इसका साक्षात प्रमाण यानी एकलव्य, जिन्होंने अपने गुरु की पहली आज्ञा पर अपना अंगूठा काट कर रख दिया था। मित्रों, इस कलयुग के जमाने में लोग अपने स्वार्थ और अहंकार में इस कदर अंधे हो गए हैं कि वह स्वयं की भलाई के अलावा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते ही नहीं। एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान और एक राजा तभी अच्छा राजा बन सकता है जो फिर दूसरों के बारे में सोचे। राजा दशरथ इसका जीता जागता उदाहरण है, जो अपने बारे में न सोचकर अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। राजा बनना है तो दशरथ जैसा बनो। देखिए, ईश्वर की रचाई सृष्टि के बदौलत ही आज आप यहाँ मौजूद है। अगर देव भक्ति कली है तो देश भक्ति उससे खिला फूल। सब कुछ मनुष्य की सोच पर निर्भर है। अगर सोच अच्छी हो तो देश भक्ति और देव भक्ति में कोई अंतर नहीं बचेगा। धन्यवाद। क्या कोई घर है जो बिना नींव के खड़ा हो सके? क्या कोई वृक्ष है जो बिना जड़ों के पनप सके? नहीं ना। उसी तरह कोई राष्ट्र बिना देशभक्ति और सुरक्षा के समृद्ध नहीं हो सकता। जैसे कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, जरा गौर फरमाइएगा कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। यह माया का अर्थ हमारे देश की सुरक्षा और स्थिरता है। लेकिन भ्रष्टाचार, जातिवाद और भेदभाव जैसी नकारात्मकताएं हमारे देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ यह तमाशा देखते रह जाएंगे और क्या यह देख देवता कभी खुश होंगे? क्यों, क्या हुआ? हमें दही जम गई है क्या? आप मानिए या न मानिए, पर हकीकत को कोई बदल नहीं सकता कि देश की सुरक्षा में ही देवता की प्रसन्नता है। इसलिए बहस का केंद्र स्पष्ट है कि जब तक रहेगा सूरज और चांद, जरा गौर फरमाइएगा कि जब तक रहेगा सूरज और चांद तब तक रहेगी देशभक्ति की ये शान। नमस्कार, मैं आस्था सुतार इस मंच पर आपके समक्ष देशभक्ति है सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति के पक्ष में मैं अपने विचारों को साझा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। गौर फरमाइएगा कि मैं नहीं मानती, अरे जनाब, मैं नहीं मानती कि सोशल मीडिया पर डीपीओ को तिरंगे में रंगना ही देशभक्ति है। देशभक्ति तो एक पवित्र भाव है, कईयों का समर्पण है। जैसे कहा गया है कि दिल तो हमारा एक है और एक ही हमारी जान। दिल तो हमारा एक है और एक ही हमारा हिंदुस्तान हमारा है और हम है इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान। जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। मैं मेरे विपक्षी मित्र जो देशभक्ति के गुणगान गा रहे हैं, जरा उनसे यह बात पूछना चाहती हूँ कि क्या देवता भ्रष्टाचार को दूर करेंगे? क्या भगवान महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को रोकेंगे? क्यों है कोई जवाब कि पत्तों की तरह सूखे पड़ गए? अपनी विचारधारा को संतुलित कर गौर फरमाइएगा कि श्री कृष्ण के जन्म ने सिखाया है कि कष्टों से महानता मिलती है। माँ देवकी ने जन्म दिया, माँ यशोदा ने पाला था। उसी तरह हम देवताओं के वंशज होंगे, हम देवताओं के वंशज होंगे। लेकिन मातृभूमि ने माँ यशोदा बनकर हमारा पालन पोषण किया है। जैसे यह महाभारत का श्लोक है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। मैं मेरे विपक्षी मित्र को एक बात याद दिला दूं कि आप जो देशभक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, आज किसी समाज में कुछ चंद ठेकेदार कुछ चंद पैसों की ललक में भगवान की नीलामी कर रहे हैं। कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 रुपए के नाम पर ठग रहे हैं। क्या ये आपकी सच्ची देशभक्ति? यह तो निष्ठा नहीं, यह तो सरासर भ्रष्टाचार है। आज ईश्वर के नाम पर धन संग्रह क्यों किया जा रहा है? भक्ति का ऐसा व्यापार क्या उचित है? इससे मुझे कबीर जी का दोहा याद आता है
कि साई इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मैं मेरे विपक्षी मित्रों को एक बात याद दिला दूं कि अगर व्यक्ति को भूख लगे तो उसकी क्षुधा को शांत करने के लिए ईश्वर के स्मरण से उसकी क्षुधा शांत नहीं होती, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात स्वयं श्री कृष्ण कर्म को प्रधानता देते हैं। इसका जीता जागता सबूत मेघा पटेल जी, जिन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाया, उषा जॉर्ज जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, और हेमंत कुमार जो हर साल अपने वेतन का 30% हिस्सा दान करते हैं, और बाकी सब सिर्फ कर्म की बातें कर रह जाते हैं। असली भक्ति तो वही है जो भूखे को रोटी दे, गरीब को सहारा दे और इस देश को ताकत दे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जननी ने जन्म दिया माँ यशोदा ने पाला था। गौर फरमाइएगा कि जननी ने जन्म दिया माँ यशोदा ने पाला था, धरती माँ ने हर बार हमें अपना लाल संभाला था। भगवान का आशीर्वाद तब तक अधूरा है जब तक देशभक्ति का दीप जलना जरूरी है। धन्यवाद। ये भारत की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये वो भूमि है जहाँ नदियों को पवित्र माना जाता है, ये वो भूमि है जहाँ महिलाओं को घर की देवी का दर्जा दिया जाता है। नमस्कार, मैं वंशिका काला देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देवभक्ति से इस विषय पर अपनी राय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। सर्वप्रथम ये जानना बहुत आवश्यक है कि देशभक्ति और देवभक्ति दोनों का ही संसार में अपना अपना स्थान और महत्व है। देशभक्ति यानी अपने देश के प्रति प्रेम और सेवा के भाव होना है, वहीं देवभक्ति यानी ईश्वर के प्रति आध्यात्मिकता और समर्पण है। मगर जब यह सवाल उठाया जाता है कि क्या वाकई में देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देवभक्ति से या नहीं, तो इसका उत्तर हमें हमारे वेद पुराणों से मिलता है। भारत के शास्त्रों में वासुदेव कुटुंबकम का महत्व बताया गया है, जिसका अर्थ है पूरा संसार एक परिवार है। हमारी देवभक्ति हमें सीमाओं से पार जाकर समस्त जीवों के कल्याण की भावना रखना सिखाती है, और वहीं देशभक्ति सिर्फ अपने राष्ट्र तक ही सीमित होती है। जब देशभक्ति अतिवादी होकर दूसरों के विचारों पर और धर्म पर सवाल खड़े करती है, तब देवभक्ति सबका सम्मान करना सिखाती है। मेरा मेरे विपक्षी मित्र से यह सवाल है कि जब समाज में अन्याय हो रहा होता है तब कहाँ जाती है उनकी देशभक्ति? जब सती बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं को आज भी समाज में बढ़ावा दिया जाता है, तब कहाँ जाती है उनकी देशभक्ति? क्यों मौन हो गए? ये भारत की भूमि है जहाँ भगवान के बाद उनकी संज्ञा डॉक्टरों को दी जाती है, मगर आज इसी देश की भूमि पर एक 33 वर्षीय महिला डॉक्टर का बेरहमी से बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई थी। तब कहाँ गया था इनका न्याय? आपकी हैवानियत की तो दाद देनी होगी जो ऐसी घटनाओं के बाद भी आप अपनी देशभक्ति का डंका बजाते हैं। अरे हद तो तब हो जाती है जब एक 3 साल की बच्ची तक को भी नहीं बख्शा गया था। उस छोटी सी बच्ची के साथ अपने ही विद्यालय में अपने ही शिक्षकों द्वारा जब कुकृत्य किए गए थे, तब आपका हृदय नहीं पसीजा? तब आपकी रूह नहीं कांप उठी? क्यों? जवाब दीजिए जनाब। हमारा देश असल मामले में तब पीछे रह जाता है जब पत्रकार भी भ्रष्ट हो जाए। पत्रकारिता को हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, मगर जब गुजरात राज्य में गोधरा में 59 यात्रिकों की हत्या कर दी गई थी, या मैं ऐसा कहूँ उन्हें जिंदा जला दिया गया था, तब कहाँ गया था इनका न्याय? तब कहाँ गया था सच? जब पत्रकारों का काम था कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाना है, मगर उन्हीं पत्रकारों ने सरेआम लोगों को झूठ परोसा था। आजकल के पत्रकारों को तो सच्चाई में मिर्च मसाला लगाकर सबको बताने में ज्यादा दिलचस्पी आती है। ये घटना उसी गुजरात राज्य की है जहां 2001 में आए भूकंप के समय पर सभी कौम के लोगों ने एक छत के नीचे एक दूसरे का सहारा बन खड़े हुए थे। वही लोग हैं जिन्होंने एक थाली में मिलकर खाना खाया था। क्या ऐसे भ्रष्टाचार होने पर बढ़ेगा हमारा देश? कमाल है जनाब कि जो लोग अपने आप को देशभक्त कहलाते हैं, वही भ्रष्टाचार भी फैलाते हैं।
आम आदमी जिस व्यक्ति पर अपना विश्वास रख उसे अपना मत देता है, केवल इस अपेक्षा में कि वह देश का विकास करेगा, देश के कल्याण के लिए कार्य करेगा, वही व्यक्ति एक नेता के पद पर आकर भ्रष्टाचार फैलाता है। आज न जाने कितने लोगों की सच्चाई पैरों तले दबा दी जाती है, बस अपने ही फायदे को देखने के लिए। क्या ऐसे बढ़ेगा हमारा देश? आप सभी ने सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का नाम तो सुना ही होगा। ये वो क्रांतिकार हैं जिनके देशभक्ति की मिसालें दी जाती है लोगों को। मगर जब ये क्रांतिकारी अपने देश के लिए लड़ रहे थे, तब इन्हें हौसला, ताकत और निडरता जैसे नैतिक मूल्य प्राप्त कहाँ से हुए थे? देवभक्ति से जनाब, देवभक्ति से। देवभक्ति वह ज्वाला है जो आपके आत्मा को शुद्ध कर हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देती है। देवभक्ति हमें कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है, जहाँ धर्म है वहाँ कर्म है, और जहाँ कर्म है वही विजय। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बिना देवभक्ति के देशभक्ति अधूरी है। धन्यवाद। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, जरा गौर फरमाइएगा। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही मायने में स्वतंत्रता पाई थी। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। नमस्कार, मैं ध्रुवराज जडेजा। आज आपको बताऊंगा क्या है सही मायने में देशभक्ति की असली परिभाषा। जिस भावना ने सुभाष चंद्र बोस जी को अपने वतन की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया, वो है देशभक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य की उस वीरता का नाम है देशभक्ति। चाणक्य की उस राजनीतिक, समाजनीतिक, कूटनीतिक एवं उस राष्ट्र प्रेम का नाम है देशभक्ति। चंद्रशेखर आजाद की उस आजादी की सुगंध का नाम है देशभक्ति। महात्मा गांधी के उस त्याग और स्वाभिमान का नाम है देशभक्ति। इतना ही नहीं, और ऐसे कितने वीर सपूतों की देशभक्ति के कारण आज हम स्वतंत्रता की सुगंध में सांस ले रहे हैं। पर मित्रों, इसका यह अर्थ नहीं होता कि हम क्रांतिकारों के कामों को ही देशभक्ति का नाम दें। हमारे सोनू सूद जैसे अभिनेता जिन्होंने महामारी के वक्त बेबस और लाचार लोगों की सहायता की और 7,000 लोगों के जीवनों को संवारा, यह है देशभक्ति। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षण के नए द्वार खोले, यह है देशभक्ति। रोहित शर्मा जैसे धुरंधर बल्लेबाज जिन्होंने भारत के लिए T20 ट्रॉफी जीतकर भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया, यह है देशभक्ति। अब मेरे जो विपक्षी मित्र हैं जो देवभक्ति की दलीलें देकर देवभक्ति को देशभक्ति से सर्वश्रेष्ठ साबित करने पर तुले हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जनाब, देशभक्ति तो एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही पूर्ण है। देशभक्ति तो जुनून है, समर्पण है, और हमारे देश के प्रति हमारे निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है देशभक्ति। अब मेरे विपक्षी मित्रों से मेरा सवाल है कि हमारे पुराने ग्रंथों में तो महिलाओं को माँ सीता एवं माँ दुर्गा का रूप माना गया है, तो क्यों जब किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो आप मौन रहते हैं? क्या यह है आपकी देवभक्ति? ऐसे कितने रईस एवं नामधारी लोग हैं जो देवालय में जाकर हीरे जवाहरात चढ़ा कर आते हैं, पर उसी देवालय के बाहर बैठे एक गरीब जो सिर्फ पेट पर खाना मांगता है, उसे खाना देने से नकार करते हैं। क्या यह है आपकी देशभक्ति? अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है जनाब। अरे भारत तो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यह मेरी वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। अरे यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए, और मरने के बाद भी तो गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को जब कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय, वंदे मातरम।
यह है पवित्रता, यह है सच्ची आत्मा। जी यह भक्तों की भूमि है, यह वीरों की भूमि है। इस धरा पर वीरता और भक्ति का संगम है, जहाँ धर्म और कर्तव्य का मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा देता है। जी इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भक्ति का दीप जलाओ, जीवन में प्रकाश भर। जी जरा गौर से सुनिएगा, जी जरा गौर से सुनिएगा। भक्ति का दीप जलाओ, जीवन में प्रकाश होए, हर हृदय में बसे प्रभु, यही जीवन का सार होए। देव भक्ति वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। देव भक्ति वह शक्ति है जो हर कठिनाइयों को मिटा सकती है। जी नमस्कार सभी को। आज मैं स्वरा प्रसाद सावंत आप सभी के समक्ष देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देव भक्ति से इस विषय के विपक्ष में अपना चाहती। जी मेरे माननीय विपक्ष मित्र जी, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि देशभक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित न होकर अपनी आत्मा का वह दीप है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। लेकिन आज के इस व्यस्त और भौतिकतावादी युग में देशभक्ति को कमजोर या गैर जरूरी मानने लगे। जरा सोचिएगा, जब चारों ओर कठिनाइयां आती है, जब क्या करें कुछ ना समझ आता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम किसे पुकारते हैं? ईश्वर को ही ना। आखिरकार देशभक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है, हमें विश्वास दिलाती है कि हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आएगा। जी इतिहास भी इस बात का गवाह है। उदाहरण के तौर पर मीरा की कृष्ण भक्ति, भक्त प्रहलाद का विष्णु के प्रति अडिग विश्वास और हनुमान जी का श्री राम के प्रति समर्पण। इनके भक्ति ने चमत्कार किए, असंभव को भी संभव बना दिया। तो क्या आज हम इतने ताकतवर भक्ति को कमजोर मान सकते हैं? जी जरा गौर फरमाइएगा, जी जरा गौर फरमाइएगा। आंखों में जब अंधेरा सा छा जाता है, जब क्या करे कुछ ना समझ आता है, कहने को कोई सहारा न होता है और मन तन्हा बेचारा सा हो जाता है, तब वही जा रुकता है जहाँ भगवान का बसेरा होता है, जहाँ भगवान का बसेरा होता है। जी मेरे माननीय विपक्ष मित्र जी जो दलीलें दे रहे हैं, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि जब नेता और सरकारी कर्मचारी अपने स्वार्थ की खातिर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं, तब कहाँ जाती है आपकी देशभक्ति? जब बलात्कार से पीड़ित महिला को न्याय मिलने के बजाय उसी पूरी जिंदगी अपने समाज के सामने सर झुका के चलना पड़ता है, तब कहाँ जाती है आपकी देशभक्ति? जब गुनहगार फांसी पे चढ़ने के बजाय सरेआम आजाद घूमता है, इसके बावजूद सरकार चुप रहती है, तब कहाँ जाती है आपकी देशभक्ति? जब धर्म और जाति के नाम पर दो देशों के बीच घमासान लड़ाई होती है, दुश्मनी पैदा होती है, तब कहाँ जाती है आपकी देशभक्ति? जी मेरा बस आपसे इतना ही निवेदन है कि बोलने से तो झूठ भी सच साबित हो सकता है, इसीलिए अपने देशभक्ति को केवल बोलकर नहीं तो अपने कर्मों से साबित कर दिखाइएगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप में कठिनाइयां आती है, तब क्या आप भगवान को याद नहीं करते? जब आप में कोई सहारा न होता है, तब क्या आप भगवान को याद नहीं करते? लोग कहते हैं कि देशभक्ति सबसे ऊपर है। जी मैं मानती हूँ देशभक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपके अंदर देशभक्ति ना हो तो आप एक सच्चे देशभक्त भी नहीं बन सकते। जी आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि देशभक्ति से बनता है समाज का आधार। जी देशभक्ति से बनता है समाज का आधार, लेकिन देवभक्ति से ही मिलता है जीवन का सार। देवभक्ति से ही मिलता है जीवन का सार। धन्यवाद। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पुंज भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मैं आभा वैद्य आज देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देवभक्ति से इस विषय के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के पावन सेकंड में खड़े हो जाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोर शोर से नारे लगाना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे साल में 2 बार तिरंगा लेकर घूमना ही देशभक्ति है, तो जी नहीं। यदि राष्ट्र के शोषित, पीड़ित, दमित, कुंठित
जनता के प्रति आपके हृदय में अनुराग पैदा हो तो समझिए आप देशभक्त हैं। यदि राष्ट्र की उन्नति आपको विशुद्ध करे और आप उस उन्नति से उल्लासित हो तो समझिए आप देशभक्त हैं। जैसे कोई मकान परिवार के बिना घर नहीं बन सकता, वैसे ही जमीन का टुकड़ा सच्चे कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के बिना देश नहीं बन सकता। या कोई राष्ट्र है जो सिर्फ पहाड़ों, पर्वतों और नदियों से बनाया जा सकता है। अगर मैं एक राष्ट्र की तुलना भवन से करूं तो देशभक्ति वह बुनियाद है जिसके बिना वो भवन खड़ा नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, आपका ध्यान एक ऐसे विषय पर केंद्रित करना चाहूंगी। किसी महापुरुष ने कहा था, पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। अगर मंदिर जाने से भगवान मिलते तो क्यों मांगे पुजारी आपसे दान। फिर भी हमारे समाज की यह दशा है कि चंद रूढ़िवादी एवं खुदगर्ज लोग हैं जो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हैं और ईश्वर के भक्तों के बीच में अमीर गरीब का भेदभाव करते हैं, जबकि भगवान ने तो अपने सभी भक्तों को समान माना है। इस पर स्वयं कबीरदास ने कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई। मेरे मित्रों, अपने मस्तिष्क के घोड़े दौड़ाते हुए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो उस कार्य की सफलता के लिए देवालय जाते हैं, बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान कराते हैं, तब क्या उस कार्य में सफलता दिलाने के लिए साक्षात ईश्वर इस धरती पर उतर आ जाते हैं? नहीं ना। उसके लिए आपको ही कर्म करना पड़ता है जिससे आपका भविष्य उज्जवल और साकार बनता है। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को चढ़ते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को चढ़ते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मैं अपने विपक्षी मित्रों से पूछना चाहूंगी कि क्या उनकी देवभक्ति गरीबों का पेट नहीं भर सकती? मेरे मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब दीजिए कि क्या वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में मूर्ति मालाएं बेच रहा होता है, क्या इसे आप उसकी देवभक्ति कहेंगे? ये उसकी देवभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इंसान पैदा नहीं होते। अपने देश को प्रगति करते हुए देखने के लिए मन में जलती लहू है देशभक्ति। ऐसे ही अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने वाली भारत की सामाजिक कार्यकर्ता थी सिंधु ताई, जिन्होंने अपने सिर पर रहने के लिए छत न होने के बावजूद उन 2000 से ज्यादा बच्चों की आश्रय स्थली बनी, जो आगे जाकर देश की धरोहर कई महान वकील, इंजीनियर और समाज सेवक बने। क्या आप भी मानते हैं कि अपने आस्था एवं विचारों के लिए पृथ्वी का ह्रास करना आपके सर्वोत्तम देशभक्त होने की निशानी दर्शाता है? तो फिर क्यों अपने आप को देवभक्त कहलाने वाले वो लोग माँ समान माने जाने वाली माँ गंगा को प्रदूषित करते हैं, चंद सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं के लिए गंदगी फैलाते हैं? जब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो फिर क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? असली मायनों में देश को आवश्यकता है एक नए पौध की, जो भले ही बलिदान का न हो, लेकिन उसका एक एक फूल, एक एक फल देश के चरण पर अर्पित हो। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति। मेरे विचारों में देश कहता है कि तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT, NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, अभी तो इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हिमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम। अंत में अपने विचारों को समेटते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और समर्पण का भाव है देवभक्ति। बेबस और लाचार व्यक्ति की प्रार्थना में है देवभक्ति। संयम एवं करुणा की जीती जागती मिसाल है देवभक्ति। जीवन की आपाधापी और तनावपूर्ण माहौल में शांति एवं सुकून पहुंचाती है देवभक्ति। नमस्कार, मैं वेदिका सतीश वारन आज आपके समक्ष देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देवभक्ति से इसके विपक्ष में अपनी राय रखना चाहती हूँ। देवभक्ति
तो सर्वव्यापक है, वह तो संसार के कण कण में व्याप्त है। माँ के आशीर्वाद में, गुरु की सीख में, गंगा जैसी निर्मल सरिता में, पेड़ों पौधों के परोपकार में है देव भक्ति। ये मातृभूमि स्वयं को धन्य समझती होगी। इसकी धरा पर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप एवं शिवाजी जैसे वीर पुत्रों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन में कई जंग लड़े, पर उस जंग में जीतने का जज्बा है देव भक्ति। इस धरा पर राम, कृष्ण, भरत और प्रहलाद जैसे वीर पुत्रों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने राम जी जैसे आदर्श पुत्र की मिसाल दी है, जो अपने भाइयों में सदा आदर्श रहे हैं। लेकिन मेरे विपक्षी मित्र जिस देव भक्ति पर लांछन लगा रहे हैं, उन्हें इस बात का स्मरण करा दूं कि आज के युग में राम जैसा बेटा मिलना नामुमकिन है। आज की युवा पीढ़ी चंद पैसों के लालच में पड़कर अपने ही भाइयों का गला घोट रही है। इतना ही नहीं, जिन माता पिता ने जीवन भर संघर्ष और त्याग कर अपने ही खून पसीने से उन्हें सींचा, आज उन्हीं माँ बाप को अपना ही प्यार किसी बेड़ियों की भांति प्रतीत होता है, इनसे वह आजाद होनी चाहते हैं। यही वजह है कि उन्हें दिन दहाड़े घर के बाहर कर दिया जाता है। जनाब, क्या इसे आप कहते हैं आपकी देशभक्ति? मेरे मित्र बहुत समय से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर होने वाले सांप्रदायिक दंगे और अहिंसा के जिम्मेदार देवभक्त है। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति से है कि कब किसी ईश्वर ने आपसे कहा है कि मेरे नाम पे लड़ो? क्या राम जी ने कहा है, या गुरु गोविंद जी ने कहा है, या महाकाल में बैठे भोलेनाथ ने कहा है? बोलिए, कुछ जवाब नहीं है ना? इस पर मैं कुछ क्षण शब्द कहना चाहूंगी। जाति वर्ण का, गोत्र का चढ़ा शीश अभिमान, शुद्ध धर्म छोड़ के भटक गया नादान, भटक गया नादान। अरे दोस्तों, यह तो आपकी गलतफहमी है। ये गलतफहमी आपकी सोच की है, आपकी मानसिकता की है। इस ईश्वर ने सुंदर सृष्टि की रचना और इस सुंदर सृष्टि को नियमित रूप से संचालित करने के लिए मनुष्य की रचना की है। लेकिन मनुष्य अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म, ये तो मनुष्य की मानसिकता पर आधारित है। अतः आप ईश्वर पर गलत आरोप लगाना बंद कीजिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि देवभक्ति एक बीज है और देशभक्ति उससे पनपा पौधा। धन्यवाद। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। जनाब, गौर फरमाइएगा, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। देशभक्ति की वो ज्वाला जो दिल में जल गई, हर आंधी हर तूफान से टकरा निकल गई। देशभक्ति से मिलती शक्ति अपार, पर देशभक्ति से होता जीवन साकार। नमस्कार, मैं आर्या शिलार आज आप सभी के समक्ष देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देवभक्ति से इसके पक्ष में अपने विचार रखने जा रही हूँ। आखिर क्या है देशभक्ति? मात्र स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति के गाने लगाना, घरों के बाहर तिरंगा फहराना, तिरंगे वाले कपड़े पहनकर इंटरनेट पर तस्वीरें डालना और अगले ही दिन सब कुछ भूल जाना, क्या ये है देशभक्ति? नहीं। जब जमशेदजी टाटा देश में रहकर देश में रोजगार के सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति समझ देते हैं, वह है असली देशभक्ति। सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को जीवन में अपनाने वाली सुमेधा चित्रे, एक प्रेरणादायक समाज सेवी जिन्होंने भारत सेना की सेवा में 24 वर्षों तक समर्पित रहकर अनगिनत योगदान दिए। युद्ध भूमि में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने से लेकर सैनिकों के परिवारों की सहायता करने तक उन्होंने अपने कार्यों से समाज में अमूल्य योगदान दिए। यह है असली देशभक्ति। सर झुके बस उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। बुझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई होगी। खोया है जिन माओ ने लाल अपना, न जाने वो माए कैसी सोई होगी। आओ झुके सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना, जातिवाद को खत्म करना, मतदान और रक्तदान जैसे कार्यों को बढ़ावा देना, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकना, यह है असली देशभक्ति। कई बार लोग देवभक्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे अपने कर्म और आत्मविकास पर ध्यान नहीं देते। वे यह मान लेते हैं कि सिर्फ भगवान की भक्ति से सब कुछ ठीक हो जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। परिणाम स्वरूप वे मानसिक तनाव और दुख में गिर जाते हैं। इस स्थिति में वे गलत रास्तों पर चलने लगते हैं और गलत लोग जैसे ढोंगी साधु की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे समय उन्हें आत्महत्या जैसे खतरनाक विचार आते हैं। हमें देवभक्ति के साथ साथ अपने कर्म और आत्मविकास पर भी ध्यान देना चाहिए। भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं।
महोदय, हमारे क्रांतिकारी वीरों ने केवल देवभक्ति पर ही ध्यान लगाया होता तो शायद भारत को स्वतंत्रता कभी नहीं मिल पाती। उन्होंने देवभक्ति के साथ साथ संघर्ष और बलिदान का मार्ग अपनाया। केवल आध्यात्मिकता पर ही जोर दिया जाता तो आज हम गुलामी की बेड़ियों में बंधे रहते। मेरे विपक्षी मित्र जो देवभक्ति के दलीलें दे रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आज भी कई स्थानों पर लोग अपनी संपत्ति और समृद्धि की लालच में आकर जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों की बलि चढ़ाते हैं, यह मानकर कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनका जीवन एक नए और बेहतर शुरुआत की ओर बढ़ता है। यह पूरी तरह से अमानवीय है और समाज में अंधविश्वास बढ़ता है। आप बताइए, क्या भगवान कभी किसी की बलि मांगते हैं? नहीं ना। ऐसी देवभक्ति हमेशा हानिकारक ठहराती है और आने वाली पीढ़ियों का नाश करती है। हम देश के भविष्य के लिए शासक बनकर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हम आने वाले देश के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता, शिक्षक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आज लोग भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकते हैं। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर दौड़े, हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। रणभूमि में खिलाड़ी होना जरूरी नहीं, पर गुकेश दोमाराजू की तरह दुनिया के सबसे कम उम्र के चेस प्लेयर बनकर अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अजी, एक श्वान भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। हम तो तभी इंसान हैं। ठीक उसी तरह हमें भी अपने मातृभूमि के प्रति वफादार होना चाहिए। मंदिर का भगवान भूखा नहीं, लेकिन गरीब की थाली खाली है। भगवान मंदिरों में नहीं, भूखे के पेट में और किसान के खेत में बसते हैं। क्या उस भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण है या उस मिट्टी की जो हमें रोटी देती है? देव भक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ावा देती है, जबकि देशभक्ति पूरे समाज को ऊपर उठाने की प्रेरणा देती है। अगर हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे तभी अपनी धर्म, संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रख सकते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, सर्वासु भक्तिषु श्रेष्ठ कथ्यते, अर्थात देशभक्ति सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए। जरा गौर फरमाइएगा, कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए। आओ हम वो लोग बने जो वक्त का साँचा बदल गए। धन्यवाद। यह संतों की भूमि है, जो अधर्म को नष्ट करने वाले भगवान की भूमि है। यह वो पवित्र भूमि है, यह वो पवित्र भूमि है जहाँ पर भक्त भरत का जन्म हुआ था, जहाँ पर धर्म के प्रति आस्था और भक्ति की शक्तियों ने अधर्म के खिलाफ संघर्ष किया। इस भूमि ने हमें यह सिखाया कि सच्चे विश्वास और निष्ठा से हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। यहाँ पर असत्य के खिलाफ सत्य की जीत हुई। यह स्थल हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सिद्धांतों से कभी भटके नहीं और सच्चे मार्ग पर हमेशा चलते रहे। नमस्कार सभी को, मैं दक्ष जैन आज देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है, देवभक्ति से उसके विपक्ष में अपनी राय देना चाहूंगा। देवभक्ति वह दिव्य सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच में प्रेम और विश्वास के मार्ग को प्रशस्त करती है। जैसे कि गीता में कहा गया है कि पार्थ, जो भक्त मन से मुझे पूछते हैं वह मुझे प्रिय है। देवभक्ति केवल आत्मा की शांति ही नहीं देती, बल्कि समाज में सहिष्णुता और नैतिकता की भावनाओं को बढ़ावा देती है। देवभक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन, वचन और क्रिया से ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि संतों का संग प्रभु के दर्शन से बड़ा है, जो प्रभु का ध्यान करता है वह दुखों से पार हो जाता है। जब हम देव भक्ति की बात करते हैं तो हम ये बात नहीं भूल सकते कि भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे अन्य देवताओं की परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी को ईश्वर मानने के बजाय भगवान विष्णु को ईश्वर माना। इस वजह से राजा हिरण्यकश्यप के अंदर अहंकार जागा। उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहकर उन्होंने भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाकर मारने की कोशिश की। पर कहते हैं ना, जाको राको साइया मार सके ना कोई। भगवान विष्णु की कृपा भक्त प्रहलाद पर थी, इस वजह से वह सुरक्षित रहे और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम से रहो, एकता बनाए रखो, दूसरों की मदद करो। पर चंद लोग ऐसे भी है, जब सड़क पर कोई हादसा होता है तो लोग उनकी मदद करने के बजाय उनकी तस्वीर खींचते हैं। तब कहाँ जाती है आपकी देशभक्ति? जैसे कि मेरे विपक्षी मित्र दलीलें दे रहे हैं, मैं उनको यह बात कहना चाहूंगा कि आप बड़े ही जश्न से मकर संक्रांति मनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, चाइनीज मांझे तक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यह बात नहीं जानते कि चाइनीज मांझे के कारण कई सारे पशु पक्षियों को हानि होती है, कई सारे मनुष्य का गला कट जाता है। तो ये हाल ही का हादसा, केरला में एक मनुष्य स्कूटी पर बैठ के अपने घर जा रहा था, रास्ते में चाइनीज मांझे के कारण बेचारे का गला कट गया। तब लोग उसकी जान बचाने के बजाय तस्वीरें खींचते हैं। तब कहाँ जाती है आपकी देशभक्ति, कहाँ जाती है आपकी मानवीयता?
मेरे विपक्षी मित्र ऐसे गुणगान गा रहे हैं कि भगवान हमें खाना नहीं देते, हमें निवाला नहीं देते, तो मैं उनको यह बात कहना चाहूंगा, किसी ने खूब कहा है, ईश्वर भले ही हमें भूखा उठाता है पर कभी भी हमें भूखा नहीं सुलाता। अंत में मैं यह बात कहना चाहूंगा कि देव भक्ति हमें अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। देव भक्ति व्यक्ति के मन को प्रबल और सशक्त बनाती है, जिसके जरिए वो दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग को जीतकर सफलता के मुकाम को हासिल कर सकता है, सफलता के मुकाम को हासिल कर सकता है। धन्यवाद। मुझे गर्व है अपने देश पर, यहाँ मेरी शान, जहाँ हर एक दिल में है एक अलग ही जान। गंगा की धारा से लेकर हिमालय की ऊंचाई, माँ की ममता में बसी यह भूमि है सच्ची लड़ाई। मेरे देश के वीरों ने दी है बलिदान, उनकी शहादत से हर एक है यहाँ महान। हर नन्हा बच्चा, हर बूढ़ा इंसान देश के प्रति अपना करता है सम्मान। ना किसी देवता से, ना किसी मूर्ति से, सच्ची भक्ति तो है अपनी मातृभूमि में। जो सच है हमारे दिलों में वही असली पूजा, देश की सेवा में ही है बसी हमारी पूजा। मैं पवित्रा सानिल, इस देश की सच्ची नागरिक, आज आपको देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देवभक्ति से इसके पक्ष पर बात करूंगी। पूजा करते हैं हम मूर्ति के, लेके भगवान का नाम। पूजा करते हैं हम मूर्ति के, लेके भगवान का नाम। हमें क्या पता ढकते हमें वह लोग देवभक्ति के नाम। अरे मेरे विपक्षी मित्र जो देवभक्ति की जयघोष लगा रहे हैं, उन्हें यह बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि या देवदूत कहते हैं, और यही देवदूत व्यक्ति लोगों की लाचारी एवं गरीबी का फायदा उठाकर उनका मानसिक एवं शारीरिक शोषण करते हैं। क्या इसे आपकी नजर में देवभक्ति कहते हैं? कुछ चंद पाखंडी एवं धूर्ते लोगों के चलते लोगों का आस्था पर से विश्वास खोता जा रहा है। इतना ही नहीं तो कुछ चंद राजनेता अपनी सत्ता की जड़ को बनाए रखने के लिए हमें धर्म के नाम पर लड़ाकर फूट डालो राज्य करो की नीति साकार कर हम पर राज्य करते हैं। तब आपकी देवभक्ति कहाँ चली जाती है? तब क्या आपको लोगों की चीख सुनाई नहीं देती? तब क्या आप गूंगे और बहरे हो जाते हो? मेरे विपक्षी मित्र, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे भी ईश्वर पर आस्था है और ईश्वर द्वारा बनाई गई चीजों पर विश्वास है। जिस देश में गाय को गौ माता के नाम से पूजा जाता है, उसी देश में कुछ पशुओं की बलि देकर देवताओं को प्रसन्न करने की जो धक्यानुसी प्रथा है ना, क्या आपने उस पर कभी गौर फरमाया है? क्यों अब तक आपने इस प्रथा का विरोध नहीं किया? मुझे याद है कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है क्योंकि वह गायों से प्रेम करते हैं। तो फिर क्यों इस धरा पर पशुओं की कुर्बानी दी जाती है? जिस समय आप पशुओं की रक्षा के लिए आवाज उठाना शुरू करोगे ना मित्रों, वही सही मायने में आपकी भक्ति कहलाएगी। अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि भक्ति तो वो होती है जिसमें सच्चाई हो। भक्ति तो वो होती है जिसमें सच्चाई हो। भक्ति तो वो होती है जिसमें अच्छाई हो। भक्ति मन से करो न धन से, भक्ति मन से करो न धन से, भक्ति करो तो अपने कण कण से। धन्यवाद। यह धरती है पवित्र, यह धरती है महान, जहाँ भक्ति की धारा बहती है और प्रेम की बातें होती है। मीराबाई की वीर व्यथा, कबीर दास की संत वाणी, तुलसीदास की रामायण और सूरदास की कृष्ण भक्ति के थे। नमस्कार, मैं रिद्धि अवार्ड। देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देवभक्ति से इसके विपक्ष में आपके सामने अपनी राय प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस पावन देव भूमि पर जहाँ हिमालय साक्षी है, अनंत दिव्यता के अनगिनत महान आत्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित कर संसार को आलोकित किया। इसी भूमि पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया और धरती से शक्ति प्राप्त कर विश्व को आत्मा की एकता का संदेश दिया। यह भूमि उनके चिंतन और त्याग की साक्षी है, जिसने मानवता को भक्ति का नया दृष्टिकोण दिया। आज भी इस भूमि के मंदिरों की घंटियों में, तीर्थ यात्रियों के भजनों में और नदियों की धाराओं में प्राचीन मंत्र गूंजते हैं। देवभूमि केवल एक स्थान नहीं बल्कि भक्ति की अनवरत धारा है, जो हर युग में साधकों को मार्गदर्शन करती है। देवभक्ति हमें एकता और समरसता का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमारा धर्म
जाति, वर्ग, भाषा कुछ भी हो, हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना से पेश आना चाहिए। मेरे विपक्षी मित्र जो ये दलीलें दे रहे हैं कि देवभक्ति के कारण देश के विकास में, देश की प्रगति में बाधा आ रही है, तो उनके विरुद्ध में मैं उनसे चंद सवाल पूछूंगी कि जब 90% अंक लाने वाले छात्र को संघर्ष करना पड़ता है और 35% अंक लाने वाला पहले और बेहतर कॉलेज में प्रवेश पाता है, तब यह न केवल एक व्यक्ति विशेष बल्कि पूरी राष्ट्र की प्रतिभा के साथ अन्याय प्रतीत होता है। क्या यह है देशभक्ति, जहां परिश्रम और प्रतिभा की उपेक्षा कर केवल जाति, धर्म या आरक्षण के आधार पर भविष्य का निर्धारण किया जाता है? मित्रों, जो तिरंगा हम 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन गर्व से फहराते हैं, उसे अगले ही दिन सड़क पर कचरे के समान फेंका जाता है। क्या यही आपकी देशभक्ति का वास्तविक स्वरूप है? सच्ची देशभक्ति तभी प्रकट होती है जब हम तिरंगे का सम्मान न केवल उत्सव के दिन बल्कि हर समय उसके प्रति जिम्मेदारी और सम्मान का भाव रखते हैं। क्या यह विडंबना नहीं है कि एक ओर आप भारत माता की जय वंदे मातरम जैसे नारे लगाते हैं और दूसरी ओर उसी मातृभूमि के प्रति तिरंगे को उपेक्षित करते हैं? कोई पुलिसकर्मी कानून के रक्षक के बजाय रिश्वत लेने वाला बन जाता है, तब आपकी देशभक्ति कहाँ लुप्त हो जाती है? क्या यह वही आदर्श है जिस पर आप अपने राष्ट्र को गर्वित महसूस कराते हैं? रिश्वत देकर अपने कार्य को आगे बढ़ाना और रिश्वत लेकर कानून को दरकिनार करना देशभक्ति कहलाती है? मित्रों, ये तो बस आपकी समझ का फेर है। दरअसल देशभक्ति के कारण ही देशभक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देशभक्ति के जरिए ही व्यक्ति में प्रेम, करुणा, एकाग्रता, सकारात्मकता एवं विश्वास को बढ़ावा मिलता है, जिसके चलते हम संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर देश की प्रगति एवं उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आज जो चमकता है हिंदुस्तान वो देवभक्ति का है परिणाम। आज जो चमकता है हिंदुस्तान वो देवभक्ति का है परिणाम। ऋषियों की तपस्या और भक्तों का यही है सम्मान। बिना भक्ति के यह मिट्टी केवल मिट्टी रह जाती। भक्ति ही है जो इसे स्वर्ग से भी सुंदर बनाती। भक्ति ही है जो इसे स्वर्ग से भी सुंदर बनाती। धन्यवाद। देश की भक्ति तभी सार्थक कहलाएगी जब हृदय में ईश्वर की ज्योत जल पाएगी। देशभक्ति से ही मिलती है शक्ति जिससे निभा सके हम देशभक्ति। मंदिर की घंटियां जब मन में गूंजती है तभी तो वीरता की राहें मजबूत होती है। देवों के आशीष से मिलता है सहारा, तभी तो बनता है सैनिक देश का प्यारा। ईश्वर में श्रद्धा से आता है संयम और संयम से ही बनता है देश का धर्म। नमस्कार, मैं रुति भरडे आज आपके समक्ष देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देवभक्ति से इस विषय के विपक्ष में अपना परामर्श करने जा रही हूँ। देवभक्ति वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। यह कोई कर्म या भारी प्रदर्शन नहीं बल्कि अंदर मन की गहनतम पुकार है। यह वह अवस्था है जहाँ प्रार्थना शब्दों की सीमा से परे मौन में बहने लगती है। वैसे ही जैसे एक बालक जो कीचड़ में खेल कर आता है, फिर उसकी माता उसे नहलाकर वापस से स्वच्छ और सुंदर बना देती है। देवभक्ति एक बीज की तरह है जिसको हृदय की भूमि में बोया जाए तो वह जीवन को दिव्यता के वृक्ष में बदल देती है। देवभक्ति वह दीप है जो मन के अंधकार को मिटाकर आत्मा को प्रकाशित करता है। देवभक्ति का पहला कदम है अहंकार का त्याग। जब मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करता है तो उसे इस प्रकृति की सुंदरता नजर आती है। जब मनुष्य अपने जीवन से परास्त होकर परमात्मा के शरण में जाता है तो उसे अंधकार में एक ज्योति की रोशनी दिखाई देती है, अर्थात उसे अपने जीवन में आशा दिखाई देती है। जब वह 17वीं शताब्दी में जन्मे एक महान मराठा सम्राट जो एक वीर योद्धा, कुशल प्रशासनिक अधिकारी और एक महान रणनीतिकार रहे हैं, जिनकी गिनती भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में होती है। जी हाँ, वही छत्रपति शिवाजी महाराज। उन पर मां भवानी का आशीर्वाद था, इसलिए अपने राष्ट्र को शत्रुओं से बचा सके। इसलिए हम नारा लगाते हैं, जय भवानी जय शिवाजी। अब जैसे मेरी विपक्षी मित्र दलीलें दे रहे हैं कि अपने देश की सेवा करो, अपने देश को आगे ले जाओ, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है अपने देश को प्रदूषित कर इस पावन भूमि पर गंदगी फैलाकर अर्थात नदियों में प्रदूषण कर बड़े बड़े कारखानों में से नदियों में गंदगी फेंकना, जगह जगह पर इमारतें बांधने के लिए वृक्ष काट देना, बस, कार, बाइक, स्कूटर ऐसे वाहन चलाकर इस वायु को प्रदूषित कर देना, क्या
संस्कृति और सभ्यता को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के रंग में रंगे हुए हैं, क्या आप इसे अपनी देशभक्ति कहते हैं? मित्रों, अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूँ कि जब व्यक्ति अपने जीवन से परास्त हो जाता है, या फिर जब मनुष्य अपने जीवन या फिर जब उसके जीवन में दुखों के बादल मंडराने लगते हैं, अथवा जब उसके जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण पनपने लगती है, तब उसे उस ईश्वर की ही याद आती है और वह ईश्वर के ही शरण में जाता है, जिससे उसके भीतर अदम्य साहस, एकाग्रता ऐसी भावना जागृत होती है जिसके नींव पर वह देशभक्ति की इमारत को खड़ा रखता है। धन्यवाद। जहाँ भक्ति से उठता है हर जीवन का आधार, वही भूमि कहलाती है देवभूमि, जिसका इतिहास है महान। राम ने भक्ति से जीवन में मर्यादा का पाठ सिखाया, कृष्ण ने गीता के उपदेश से कर्मयोग का मार्ग दिखाया। देवभक्ति से अर्जित होता है संयम और साधना का बल, यह वही ऊर्जा है जिसने संतों को बनाया हरियुग का मन। नमस्कार, मैं सिद्धियावा आप सभी के समक्ष देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ है देवभक्ति से, इसके विपक्ष में आपके सामने अपनी राय रखना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे विपक्ष मित्र अपने तर्क शक्ति के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक यह पूछना चाहूंगी, क्या आप अपने देशभक्त होने का कर्तव्य निभा रहे हैं? जब देश में बेरोजगारी अपने उच्च स्तर पर है और लोग अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तो क्या देशभक्ति सिर्फ बड़े बड़े वादे करने तक सीमित है? आज महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है, आर्थिक असमानता और बढ़ रही है। जब गरीब की थाली से रोटी छीन रही है, तो क्या देशभक्ति का अर्थ केवल समर्थन देना है या इसके खिलाफ बोलना है? तब कहा जाती है आपकी देशभक्ति। जब माता पिताओं को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं या वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो यह कहलाती है आपकी देशभक्ति। मेरे विपक्षी मित्र यह दावा करते हैं कि वे सच्चे देशभक्त हैं, तो वे तब चुप क्यों हो जाते हैं जब उन्हीं के माता पिताओं को वृद्धावस्था में सड़कों पर दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं? यह कैसी देशभक्ति है जिसमें जीवन भर पाले पोसने वाले माता पिता को भी अंत में बोझ समझकर छोड़ दिया जाता है? शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवोभव पितृदेवोभव, अर्थात माता पिता हमारे प्रथम देवता है, इनकी सेवा करना प्रत्येक संतान का परम धर्म है। इनके वृद्धावस्था में इन्हें सहारा देना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह हमारी सच्ची देवभक्ति का भी प्रतीक है। वो कहते हैं ना, जो अपने जन्मदाताओं को ही विस्मृत कर दे, वो मातृभूमि का क्या मान बढ़ाएगा? जो अपने जन्मदाताओं को ही विस्मृत कर दे, वो मातृभूमि का क्या मान बढ़ाएगा? बिना नींव के जो महल रचता है, एक दिन बस वही रह जाएगा। यहाँ तक ही बात नहीं होती, लेकिन जब लोग सड़क पर किसी का अपघात होते देखते हैं और मदद करने के बजाय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, तब उनकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? तब आपको उनकी चीख सुनाई नहीं देती? इस बात पर मैं कुछ चंद शब्द कहना चाहूंगी। वक्त था मदद का, पर लोगों के हाथ में कैमरा था, जरा गौर फरमाइएगा। वक्त था मदद का, पर लोगों के हाथ में कैमरा था, इंसानियत चीख रही थी मगर लाइक सादा जरूरी। देशभक्ति का अर्थ केवल तिरंगा लहराने, नारे लगाने या देश प्रेम के पोस्ट करने से नहीं होता है। मित्रों, देवभक्ति हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति के भीतर प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति होनी चाहिए। समाप्ति से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, देव के बिना देशभक्ति क्या एक सूखी धारा जैसी है। देव के बिना देशभक्ति क्या एक सूखी धारा जैसी है। जब तक प्रभु ना हो पथ प्रदर्शक, हर कोशिश व्यर्थ जैसी है, हर कोशिश व्यर्थ जैसी। धन्यवाद। I hope our audience has made up their mind about which side is greater, but I am confused as ever before. Today, we take great pride in fact that both our chief guest Sunita Chawda and our guest of honor Dr. Neela Solanki are the ex-students of our school.
One who has already made her mark in the world, and the other who is surely on her way to success. Both of them are achievers of the second and first ranks in the respective years when they attended the board exam and are an inspiration to all of us. We would love to listen to them as they share something which they feel is important. First, I request our chief guest Sunita Chawda to speak, and later our guest of honor Dr. Neela Solanki will address the audience. Let all of us show our appreciation by listening to them carefully. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. મારું નામ ચાવડા સુનિતા છે. હું અત્યારે એલિસ રહીજા કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું. આજના સમારંભ માટે મને અહીં અતિથિ તરીકે આમંત્રિત થવા બદલ હું ખૂબ જ સન્માનિત અનુભવું છું. મને કહેતા ખૂબ જ ગર્વ થાય છે કે હું અહીં પહેલા ધોરણથી 10મા ધોરણ સુધીની આ શાળાની વિદ્યાર્થીની હતી. એક વિદ્યાર્થીની તરીકે મેં આ શાળામાં ઘણા સુખી વર્ષો વિતાવ્યા છે, જે હું આજે પણ યાદ કરું છું. ટીચર્સ અને પ્રિન્સિપલ્સની સરખી ગાઈડન્સ અને મારા મહેનતના કારણે મને 10thમાં સારા પર્સન્ટેજ આવ્યા છે. તમને હું એક સલાહ આપવા માંગુ છું. જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે અભ્યાસ કરો અને જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે રહો. જીવનમાં આ બંનેનું મહત્વ સમાન છે. તંદુરસ્ત શરીર આપણને સારી રીતે શીખવામાં મદદ કરે છે. મારો સ્કૂલનો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ સરસ હતો. મને આ શાળામાં સર્વશ્રેષ્ઠ શિક્ષક, પ્રિન્સિપલ અને મારા સારા મિત્રો પણ મળ્યા. થેન્ક્સ ટુ ઓલ ટીચર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ. ન્યાય, જસ્ટિસ, સ્વતંત્રતા, લિબર્ટી, સમાનતા, ઇક્વાલિટી અને બંધુત્વતા, બ્રધરહુડ આદર્શોનું પ્રતીક ત્રિરંગો હંમેશા ઉડતો રહે. As we raise our flag high, let us also raise our aspiration for a better India. Wishing you everyone a happy Republic Day. I am proud to join this function today as I am attending the school after 30 years, and I am very happy and very overwhelmed to see all my student buildings, teachers, management and other staff as well. All the memories is coming live to me. Actually, I'm really overwhelmed to see all this. I know everyone has a questions from me that how you progress and what are you doing and what is your life and how it was and how you reached there. I will definitely like to answer step by step if time permits me. So first of all, for me, I would like to say that I was born in Saurashtra, small village, and at the age of 6 months I lost my father, but that loss in my life had given me a lot of strength. Over that time, a lot of love from lot of people. So first of all, from 1 year to 6 year, I was raised in village and got love of my grandparents from both the sides, mother and father, which was the time I would say for you guys to get the love and get the affection and connection with the family, that I was lucky to get it. The second stage of my life was from 6 years to 12 years, and I was being given the discipline, the all small tactiles in stitching, sewing, cooking, getting social with the peoples in the Ahmedabad, and that was by my Mota Papa and Mota Ba. So that I appreciate them from bottom of my heart, and that had made me a path of discipline and how to see the things positivity and help each other and do a hard work, and all those I learned from that things. I would divide my third phase of my life, which is 13 years to 16 years, and that was the most important part of your life called teenager. If that things has been taken care well, then you are perfect in your life path, and if that is been wrong and affected by social media or bad effect, then that can ruin your life like anything. So I was very happy to be from grade 7 to grade 10th as a part of Gujarati medium
in Surajba Vidya Mandir. So there I would love to first of all thanks all my teachers who were there that time, and they have given me lot of support and love to be where am I today. Second thing is that time all my friends who were like my pillars. I was living in a small chawl with 17 people, 3 mama, 3 mami and their families. We were 12 children in one home, and my home size was just 200 square feet. But from there I learned to share and learned to survive. I used to study in the temple, and wherever I find a space, grocery store behind space, wherever, I appreciate each and every of them. When I'm in Jogeshwari, that memories remind me that people had supported and given me a space to study. And third thing, I didn't just get the appreciation from all the community, but at the same time I got one feelings in my heart when I was in grade 8. That in 7th standard from Gujarat to Mumbai, it was very difficult English. So I struggled in 7th standard to get a higher level of English study, and I could do that because I was studying hard. But I thought that when grade 8 the municipality student comes to the school, they also struggle a lot. And so I thought the way I struggled, this was nothing like it came inbuilt. Okay, so I thought they need a help too. So I started teaching them in a small group. The small group was getting so overwhelmed that they said, why don't you use the board and teach all who has a difficulty after the student teach, the teacher teach, it is short time, 30 minutes period, but they still cannot clear their doubts. So in the recess period, I used to teach my all colleagues, and they have actually given me a Lakshmi Ji, Saraswati and Ganpati. They contributed that time 1 rupees, 2 rupees, 3 rupees, and then they collected that precious gift for me. I still have it in my clinic, and that's very close to me, Pratik of Surajba Vidya Mandir. And that had taught me that when you teach someone, when you share someone, your knowledge becomes higher, and then that will make you a longer way to think beyond yourself. So that part of life is very important. I'm more focusing on that you should guys make friends with each other apart from social media. Here is a time to interact, take a guidance of your precious what you call teachers, and make best use of it. At the same time at home with your friends, family and neighbors also make a strong connection. That will keep you all life rather than a social media. The third phase of my life was from 16 years to 21 years, which I had aspired my career to the dentistry, and that was also all was possible because of Surajba. How? So when I was teaching the student, I get more and more proficient and efficient, and that made me the highest SSC student scoring in Jogeshwari and 11th in merit. Because of that I got around 20 to 25,000 rupees scholarship, and that made me get my science possible, which was my dream to become a doctor. And then afterwards I choose to be a dentist because I was good with my artistic skill, and frankly speaking my house condition was not that great, so I have to support my family. So 4-year career was making me faster money and getting me a better career. So I choose that, and I'm very happy with my career what I choose, and I'm right now following it. From 21 to 28 year was the time, I know most of the time we get married and settle and get faster, but I took that opportunity to grow my own self plus to settle my family first before I move on to my second phase of my life, which is the marriage life. So for that 6 years I have studied like dentistry, more and more progress there, and plus I did what you called treated lot of Bollywood celebrities, treated lot of patients which needed help, and did lot of charity work as well. At the age of 28 I got married, and that part I would still like to share that before marriage I told my husband that I am the person who want to not to be just a housemaker but want to go ahead, help people. Will you help me?
said, yes, I will. So we shared the equal responsibility of raising the kid, following each other dreams of study further. He did his PhD after the marriage of 6 years. I did my study of dentistry after 4 years. So actually we both were students till 34 year of life. So this gives an example that there is no full stop in life, that this is the time over. You can study any time and you can follow your dream any time. Frankly speaking, we were not rich at all. We were able to get a bank balance of more than $500 or $600 till the age of 34, 35. So, but we wanted to do something and study, and we did it. During that time, we got the importance that raising the kid and getting the kid on time is also the part of the life. So our student life was also our parenthood life, and we got birth of 2 kids, and then they are raising them. And he's Ronak and Priya, who are here today among you, and I purposely bring them so they see that how is our school and how is my school and my student are, so they understand and they are proud of that. After the study time, at age of 34 was the time when I could earn the money, do something for the society. So that time, from 34 year to 46 year, which is the 13th year of my life, I decided to progress further and further, and that was only and only possible because of my mother and my mother-in-law. Both used to come to Canada for one year to take care of my kids. They got the good sanskar with their grandparents, so this gives a lesson that, you know, we should respect our grandparents, and once we get lot of new things from them, that we should always keep learning from them. And after the 46, I am here and I am living happily in Canada with 2 kids, grandparents alternate with my husband, having a 2 practice, 3 houses, everything I am happy. But the most important thing that I am very happy today is the 30 years connect me back to my origin, which is my karma bhumi, and this is the one who had given me the platform to reach all this. So school life is the best life, enjoy it. At the same time, don't forget to appreciate, respect your teacher, your colleagues, make connections and all this. I would like to, definitely today is a Republic Day, so I would like to share one song. Saare jahan se acha Hindostan hamara, hum bulbule hain tani, ye gulsita hamara hamara, saare jahan se acha. At the end, I would like to say that east or west, Surajma is the best. Thank you so much. Thank you, Sunita and Dr. Neela. Both of you are an inspiration to all of us. You have made our school proud and grateful for your presence with on this Republic Day. We hope that you have more opportunities to return someday and share your experiences. We also take this opportunity to wish you all the best for your future endeavors. We have reached the culmination of our program. Let us carry the sense of love for our country not just on 15th August and 26th January, but every single day. Let us follow the rules and regulations, carry out our duties while we enjoy our rights, and last but not the least, respect our environment and keep it safe for future generations. Rightly said, Arya. We take this opportunity to thank our guest, Member of Management, Mr. Vikram Patel, and PTA members for their presence. We also thank all the teachers and students. We also thank all the teachers and students who worked hard for today's program. Our gratitude to heads of all the 3 sections who encourage us to become better all the time.
We thank the audience for being such active and enthusiastic listeners. We now call upon Sumin sir and Shifali miss to lead us through Vande Mataram, after which students and staff of the school will proceed for a Prabhat Feri. Thank you. I would like to request everyone to please stand for Vande Mataram. भारत माता की वंदे वंदे थैंक यू सो मच